Hi students, today we are going to discuss ratio and proportion chapter 7 from concise book. ओके रेशियो एंड प्रपोर्शन को समझने के लिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला गिवन है जिसको हम प्रपोर्शन में यूज़ करते हैं. ओके बाय इन्वर्टेंडो, बाय ऑल्टरनेंडो, बाय कंपोनेंडो, बाय डिविडेंडो एंड बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कंबाइंड. ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ करते हैं? व्हेन ए बी सी एंड डी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ओके तो देखते हैं कि कैसे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो हियर इट इज गिवन एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. प्रूव दैट x plus y whole square. Okay, so what you can write? X plus y whole square by y plus z whole square is equal to x by z. ये आपको प्रूव करना है. ओके एंड व्हाट इज गिवन? गिवन दैट x, y, z are in continued proportion. Okay, so if it is given x, y, z are in continued proportion, we can write x by y is equal to y by z and let it is equal to x. Okay, let, right? So what we can write? X is equal to yk is equal to, and at the place of y we can write zk, so is equal to zk into k, so is equal to zk square, right? अब x का वैल्यू क्या? zk स्क्वायर. y का वैल्यू क्या? zk, so y is equal to zk. Okay, now put this value here. Okay, so this will give you can write it here, x is equal to zk square. Okay, y is equal to zk. Okay, now we will put this value in equation. So now you can write x plus, at the place of x you can write here z k square, plus at the place of y we can write here zk upon whole square upon y plus zk. So zk plus z whole square is equal to x upon z. Okay, now we can write here z is here also, z is here also, but it is whole square, so we can take zk as common in whole square. Okay, so what is remaining here? K plus 1 whole square, right, divided by, here also z is there, so you can take as common z square into k plus 1 whole square, right? Now at the place of x what we will write? zk, and at the place of z it will be z, right? zk squared. What was the value of zk square? Okay, now so we can write here zk square. Okay, now look here, k plus 1 whole square, k plus 1 whole square cancel, z square k square by z square is equal to z cancel, k square. Now we can see that z square cancel, k square is equal to k square, hence proved. Is it okay?
Now come to question number 19. Okay. So what is in question number 19? Use componendo and dividendo to prove that. Okay. So here we are going to use componendo and dividendo. Okay. So how to prove this? By componendo, using componendo and dividendo. Question number 19. Okay. Given x is equal to, and x we can write x by 1, right, is equal to root under a square plus b square, a square plus b square plus root under a square minus b square. Okay, divided by root under a square plus b square minus root under a square minus b square. Okay, now what you can do? By using componendo and dividendo. So applying componendo dividendo, राइट, क्या करेंगे इसको? x प्लस 1. ओके, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या गिवन था? लास्ट वन देखो, फिफ्थ वन, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी. ओके, सो नाउ वी विल यूज दिस. सो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर a square plus b square plus रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं ऐसे. ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये पूरा टर्म यहाँ आएगा. ठीक है, सो प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय. ओके, क्या लिखेंगे? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सही है. अब देखो, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो इसको कैंसिल कर लेंगे. ओके, यहाँ क्या है? प्लस है, और यहाँ माइनस. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस है, लेकिन ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या रह गया. ओके, नाउ लुक हियर, दिस विल बी x plus 1 divided by x minus 1 is equal to, okay, so what we can write here? X plus 1 by x minus 1 is equal to, ये रिमूव हो गया तो 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ रह गया, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या रह गया? 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं. अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड. ठीक है, समझ में आ रहा है?
दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को रूट को रिमूव करना है। ओके, अब देखो, अब क्या कर लेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लो, ए प्लस बी ए माइनस बी से। क्वेश्चन लेंदी होता है बट इजी होता है, एक बार समझ में अगर आ जाए स्टेप्स तो ये इजी होता है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब रूट यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये क्या रह जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ अगेन यूज करेंगे डिविडेंडो कंपोनेंडो। ओके, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सही है, यहाँ क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसको प्लस कर लो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सही है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस कर लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्या हो जाएगा प्लस 2x और प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, मैं इससे यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ बिकॉज जगह नहीं है। ओके, नाउ यू कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या डिवाइड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ओके ना, चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2x कैंसिल। ओके, यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा ये यस। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर कैंसिल और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या रह गया आपके पास, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 1 2। ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2x तो ये हो गया 4x। ओके, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर। सही है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 1। सही है, डिवाइडेड बाय 4x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल कर लो। ठीक है, अब डायरेक्ट हम यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं, इसको करेंगे ऑल्टरनेटो। ठीक है, बाय ऑल्टरनेटो। ओके, सो नाउ यू कैन राइट चलिए क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 2
ए स्क्वायर एक्स बाय यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट है, समझ में आया, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, यहाँ क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। x by a, if x by a is equal to y by b is equal to z by c, ये गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है। अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या मेथड लेना है। क्या ले सकते हैं आप, यहाँ फिर से वापस लेट के कर सकते हैं। ये के ले लेने से क्या होगा, जो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहाँ लेट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी वहाँ पर रिटन है। लेट x बाई ए इज इक्वल टू y बाई बी इज इक्वल टू z बाई सी इज इक्वल टू k। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है, तो जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन नहीं है तो यहाँ क्या लिख सकते, एक ये टर्म लेंगे तो इसका इक्वल टू k, तो क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू ए के। ठीक है, फिर से वापस हम जब ये टर्म लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी के, एंड ऐसे ही ये z इज इक्वल टू सी के। ठीक है, और अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब दिख रहा है ना कि आसानी से बन जाएगा। यस, अब कोई भी बना सकता है इसको। ठीक है, चलिए तो क्या करूँ, छोड़ दूँ। क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब बाय ए क्यूब, ठीक है, प्लस वाई क्यूब बाय बी क्यूब प्लस जेड क्यूब बाय सी क्यूब इज इक्वल टू गिवन है 3xyz बाय ए बी सी। अब क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू डाल दो। ठीक है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, बाय पुट द। ठीक है, ये वैल्यू को पुट करो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए के होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना, ए के होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब प्लस बी के होल क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब, ओके, प्लस सी के होल क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ भी वैल्यू डाल लेते हैं, तो 3 इंटू, अब एक्स वाई जेड के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, ए के बी के सी के, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 ABC एंड के क्यूब। ठीक है, आप स्टेप में भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्लेस कम है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलेगा। ओके, नाउ लुक हियर, अब क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब होगा प्लस बी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब, ओके, प्लस सी क्यूब के क्यूब डिवाइडेड बाय सी क्यूब। ठीक है, ये ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्यूब। सही है, ए क्यूब कैंसिल, बी क्यूब कैंसिल, सी क्यूब एंड सी क्यूब कैंसिल। अब क्या रहेगी आपके पास, दिख रहा है के क्यूब प्लस के क्यूब प्लस के क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। हो गया, हेंस प्रूव्ड। इज इट ओके। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26। अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हैं हमने ताकि आपको सब तरह का एक क्वेश्चन मिल जाए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि मैं और भी आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना करके लाऊं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इफ 7m, यहाँ भी कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। 7m प्लस 2n बाय 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5/3 गिवन है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है m/n, और जब m/n फाइंड आउट हो जाए तो उसी से सेकेंड पार्ट भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। 7m प्लस 2n प्लस 7m माइनस 2n डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा? 7m प्लस 2n माइनस 7m, और ये हो जाएगा प्लस 2n। नेगेटिव है तो उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा। ओके, 5 प्लस 3 बाय 5 माइनस 3, सही है। यहाँ से कैंसिल कर लो, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल, माइनस 7m प्लस 7m कैंसिल। ओके, ये क्या देगा आपको? 7m प्लस 7m 14m, ओके, एंड 2n प्लस 2n 4n इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 4 2, सॉरी। ओके, अब इससे वापस से क्या कर लेंगे? इसको रिड्यूस कर लो, 2 और ये 7, ओके, एंड ये 4, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा आंसर क्या? m/n इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। सो देयरफॉर यू कैन राइट हियर m/n इज इक्वल टू 8/7, सही है। सो दिस इज योर आंसर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, ये तो था हमारा क्या? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे? इसको इरेज कर लेते हैं, आपको ये चाहिए होगा बस। ओके, अब क्या कर लेंगे? m/n तो है आपके पास ऑलरेडी, तो उसको यूज़ कर लो। सेकेंड पार्ट में m/n इज इक्वल टू था 8/7 था, ठीक है। अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हम लोग को m² n² रखना है, तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिख लेंगे यहाँ? m² बाय n² इज इक्वल टू 8 8 जा 64 बाय 7 7 जा 49। ओके, नाउ अगेन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा? ये m² प्लस n² बाय m² माइनस n² इज इक्वल टू 64, ओके, प्लस 49 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 49। है ना इजी? देखने में सम हार्ड लगता है बट है बहुत ही इजी, बस इसको प्रॉपर वे में करते चले जाना है। ओके, अब आपके पास वैल्यू आ गया, जिसका वैल्यू m² प्लस n² बाय m² माइनस n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 113 डिवाइडेड बाय
15. So is equal to 7 8 by 15. सही आंसर. So this is your answer. Okay. Thank you for watching.